Uh, Hey, yeah, tell me. Actually, I am on antidepressant for last 7-8 years, Okay, and I was taking anti-anxiety pill also okay. along with that. So अभी क्या है कि मैंने वो एंटी एंजाइटी पिल छोड़ी है, तो उसकी वजह से बहुत एक्सेसिव ब्लिंकिंग हो रहा है। इतना ज्यादा, मतलब मेरे से डेली रूटीन के काम नहीं हो रहे हैं। It's not blinking. तो It's not blinking. It's not blinking. It is a disease, and this disease is called as blepharospasm. It's not at all related ओके with that your anti-anxiety medicine. It is another disease, and you can say this disease has been progressed. Hmm? ओके The main cause of blepharospasm is the anxiety, and you were only managing the anxiety with the antidepressant. It was not getting cured. It was not cured at ओके all because when you are medicine dependent, that is not a cure, that is a management part, whatever the disease is. So you were ओके managing, you were taking mood elevators or something like that, or some alprax, alprazolam, whatever it may be, clonazepam, whatever it may be. So these medicines only elevate your mood, but this doesn't cure exactly you. So you need a proper treatment for the anxiety, and then your resultant disease will be cured. So ओके these are the two different diseases: anxiety, depression, and blepharospasm. Yes, tell me. So actually, this has really, I mean, I have been engaged. I mean, this problem started in July. So Mm-hmm. now I got engaged in May. So Mm-hmm. thing is that now I'll be getting married after a month. एक महीने बाद मेरी शादी है, and this problem is really irritating me. What should I do? पहले क्या है ना, अब आपकी शादी होने वाली, तो अब आपको और एंजाइटी आ रही है ना कि वहां जाऊंगी तो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन कैसे खाऊंगी, ससुराल कैसा मिलेगा, पति कैसा मिलेगा, तमाम तरह की चीजें होती है नहीं, ना, लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। वो मैंने उनको बता दिया कि मैं एंटी डिप्रेसेंट्स लेती हूँ माइल्ड, वो उनको पता है। बट ये ब्लेफेरोस्पाज्म इज रियली हिंडरिंग ऑल द माय नॉर्मल फंक्शनिंग और डेली अभी आपने रूटीन जिन आई लाइफ। एंड डॉक्टर्स को या जिन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है ब्लेफारोस्पाज्म के लिए, उन्होंने क्या बताया, क्या इसका आउटकम क्या है? they said that either you go for the medication, but medication, they are not sure whether this will cure the problem completely or not, or go for the botox injections, which I'm not ready for. So I just saw your YouTube video and I was convinced, and I thought that let's go for this kind of therapy or medications ओके, which you are providing. सो फॉलो दिस प्रोसेस. I'm going to Okay, tell you the treatment procedure. You need to make certain payment. After making that okay, particular payment, we will take your case in detail. Say at least for 1 hour. Everything about you, about your life, about your personality, about your childhood, about your career will be noted down. Then okay, I will personally go through your case history and will find a suitable medicine for you. After finding that particular medicine, there are two methods of giving that particular medicine. The first way is hmm, I will make hmm, it and you can purchase that medicine from a local homeopathic store and you can start consuming that medicine orally. But this is not the okay, recommended method. All the cases which you have seen till date for hmm, the condition of blepharospasm, I am curing with a different medicine method. That hmm. method is called as medicine transfusion through hair method. In this method, we take that particular medicine in a glass vial like this, and one of the hair of the patient will be inserted in this particular glass vial at my place, and you will be getting Okay, kept at your place without eating this medicine. okay, Okay, so just plug the two hair from your head, insert in envelope in like this, and send it to me. okay, Make the payment, and we okay, will take care everything. okay. So will it get cured? I mean, how long it will take? You see, this is a condition. If you go through the internet web portals, everywhere it is written. How long? It is written. It is incurable disease. But to my Yes, yes. understanding, to my experience, I have cured n number of cases. If provided the Hmm. patient is in the positive mindset, if you are going to make your mind constantly dwelling over the disease and you are not getting out of your anxiety, then this problem is incurable. But if you have O- positive mindset, our medicine is Okay, definitely going to help you. okay, Okay. fine. So follow this Okay, procedure, make the payment. We are going to okay. share every detail at your WhatsApp number.
हेलो। जी बोलिए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे थोड़े डाउट्स थे। एक हम्म। तो मुझे थोड़ी एनजाइटी कम हो गई है, हल्की बेटर फील हो रहा है। हम्म। और हल्का आंखों में भी फर्क आया है थोड़ा। बहुत पर बढ़िया। इतना नहीं है, मतलब समझ लीजिए कि 20 to 30% फर्क आ चुका है, बट इतना पूरा नहीं आया है, मतलब हमने उसमें कहाँ कहा था ऑब्वियसली आपको? टाइम लगेगा। हमने आपको कहाँ कहा था पूरा आ जाएगा 1 महीने में? हमने कहाँ कहा था? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा समय लगता है ना। ये चल। डिजीज ऐसी डिजीज है जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। कहीं आप दिखा डालिए, सभी डॉक्टर खाली एक बोलेंगे कि आपको केवल बोटॉक्स लगवाना है, और बोटॉक्स से भी कभी ठीक नहीं होता। तो आपको अगर फायदा हो हाँ रहा है, जी, हाँ जी। 30% 1 महीने के अंदर फायदा हो गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, वेट करिए और सर, माइंड में पॉजिटिविटी रखिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है। एक और चीज मुझे पूछनी थी, मुझे प्रेगनेंसी प्लान करनी है 2-4 महीने बाद। हाँ, तो यू क्या कैन गो। यू का कैन गो। कोई जो आपकी दवाइयां हैं उसका बच्चे पे तो असर नहीं होगा ना? होम्योपैथी इज द सेफेस्ट मेडिसिन। सेफेस्ट। ओके। हाँ, ठीक। ओके। यू कैन गो। ओके। ओके। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। ओके। My voice. यस। हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year. How are you? आई एम डूइंग एक्सीलेंट। व्हाट अबाउट यू एंड व्हाट अबाउट योर आई कंडीशंस? हाँ, आईज में काफी आराम है. देर इज नो प्रॉब्लम नाउ मच. मतलब 60 to 70% है. हल्का ड्राइनेस रहता है. ड्राइनेस के लिए आप अभी कुछ दिन लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करिए। और दूसरी चीज, आप थोड़ा मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए। मोबाइल भी बहुत ड्राइनेस करता है, मोबाइल, टैब, लैपटॉप, ये सब थोड़ा सा ज्यादा बट ड्राइनेस। रहती है मोबाइल भी यूज करने की. कभी कभी तो यूज करना भी पड़ जाता है. कभी कभी यूज करिए, लेकिन लगातार मत यूज करिए, आंखों को थकाइए मत। ठीक है। ठीक है. हाँ। काफी आराम है. 60 to 70% तो है. कभी कभी बढ़ भी जाती है. हाँ। हाँ। तो बहुत कम. वैसे अब तो काफी कम हो गया है. मतलब बिल्कुल अब क्या झपकना बचा है? काफी. इस समय तो हमको कहीं आपकी आंखों में ब्लिफरोस्पान तो दिख भी नहीं रहा है। हाँ जी, अब नहीं है प्रॉब्लम. काफी हद तक 60 to 70% आराम आ गया. तो 30% में क्या बचा है? कभी कभी हो जाता है. जैसे कभी धूप में जाती हूँ तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है. अदरवाइज तो ठीक है. हम्म। ठीक है। और आपका डिप्रेशन कैसा है? ठीक. मेरे को कोई एसच डिप्रेशन का कोई वो नहीं है. हम्म। एसच सिम्टम कोई अब नहीं आ रहा. हाँ, कभी कभी एनजाइटी रहती है बस. एंजाइटी कभी कभी होती है। ठीक है, वो भी हम्म. दूर करिएगा तो और अच्छा आपकी आंखें हो जाएंगी। ठीक है। ओके. हाँ हाँ। हम्म. ठीक है। थैंक यू. ओके ओके. ओके ओके। ओके. गुड। कैसी हैं आप? गुड. आंखें ठीक हो गई कंप्लीटली आपकी? हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है ब्लिंकिंग का. जरा भी. ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ब्लेफरोस्पाज जी. जैसी बीमारी से अगर आप निजात पा गई, इससे अच्छा हम्म. क्या हो सकता है? दरवाजा बंद करो। ब्लेफरोस्पाज में मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, 6 से 8 8, हाँ जी. 10 10 बोटॉक्स लगवा के आते हैं, तब भी नहीं ठीक होता है। अभी ओ. कल मैंने, हाँ, इतने इतने पेशेंट्स बोटॉक्स लगवा के आते हैं। बोटॉक्स यूजली पेशेंट्स में 3 महीने तक काम करता है, कुछ पेशेंट में तो 1 हफ्ते भी नहीं काम करता है। तो आप ओ. ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आप बहुत बड़ी बीमारी से निजात पा गए, वो भी हाँ दूर जी. से, थैंक यू सो हाल मच. से चिकित्सा करके और बिना कुछ खाए पिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. ये हाँ। तो बहुत ही मैजिकल है. मैजिकल है। बस लोगों को हम हम्म. समझा पाए कि मैजिकल है, क्योंकि लोग बड़ी, अभी कल मेरा एक पेशेंट से बात हुआ। हाँ, उनको भी हम्म. बाल का प्रॉब्लम है, दिल्ली या कहीं के हैं। हमने उनको बहुत देर हम्म. समझाया कि हम बाल से इलाज करेंगे। कहा अच्छा रुकिए, मैं पड़ताल कर लूँ फिर बताता हूँ आपको। क्योंकि एक्चुअली पहले भी विश्वास नहीं हुआ था हाँ कि हाँ। ऐसा कुछ ट्रीटमेंट है. बट अब हो रहा है तो अच्छा लग रहा है. चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा।
दीदी कैसे हैं हाँ आप? जी, मैं ठीक हूँ। क्या क्या फायदा हुआ आपके ब्लेफारोस्पाज्म में फर्दर? ब्लेफेरोस्पाज्म तो ठीक ही हो गया सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। 100% अगर कहें तो, हाँ जी, अगर बोले 100% तो 100% ही हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। और आपका ये जो आप जो एंजाइटी का प्रॉब्लम था उसमें कैसा रहा अभी? नहीं, एंजाइटी तो है मुझको, रहती है एंजाइटी। इसको ठीक करिए, नहीं तो इसको अगर ठीक नहीं होगा तो फिर से ब्लेफारोस्पाज्म लौट आएगा और फिर से अच्छा आपको ये जी। परेशान करेगा। तो एंजाइटी को भी ठीक थोड़ा, हाँ। वो और आप ही ठीक कर सर, हम्म, आप ही ठीक करेंगे वो तो। इसको ठीक बाकी मैं कर रहा हूँ अपने तरफ से, उससे भी फायदा होगा। हाँ, और हाँ थोड़ा जी, सा देखते हैं। और ठीक है। ठीक है। हाँ, ओके। ओके, ठीक है। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? नहीं नहीं। ठीक है। नो। हाँ हाँ, एक तरह से अब आपके ब्लेफारोस्पाज्म के केस को डिक्लेयर कर सकते हैं ना, क्योर हो गया ये। जी हाँ जी। वो भी दूर बैठे, इतना दूर बिना दवा खाए। जी हाँ हाँ, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक। ओके। हाँ।